میری طرف سے آپ سب کو بڑا دن مبارک ہو. کہیں آپ سے آپ کو مبارک، آپ سب کو بڑا دن مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. کلیسیا کا بھائی صاحب کا شکریہ جنہوں نے پر پھر موقع دیا کہ داماد کی محبت کو آپ کے ساتھ بانٹ سکوں. جو آج کا حوالہ ہے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 9واں اس کی 6 آیت. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا ولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر. جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے مائٹی گاڈ، خدا قادر. تو یہ آج کا مضمون ہے جس پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So جو ٹاپک ہے اس پہ ہم غور کریں گے مائٹی گاڈ، کہ یہ پیشن گوئی یسایہ نبی نے یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 800 سال پہلے کی تھی. سو یسایہ نبی جو ہے 800 سال یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ بادشاہ ہوگا، جو خدا ہے وہ بچے کی صورت میں اس دنیا میں آئے گا اور پھر ہم سب کی نجات کا بندوبست کرے گا. 800 سال پہلے یسایہ نبی نے تقریباً اس کی پیشن گوئی کی. مائٹی گاڈ کے معنی ہیں زوراور، امپریسو، پاور، عظیم، لامحدود. ہی ہو گیو لائٹ ٹو ہیومن، جو انسان کو روشنی دکھائے، با اختیار. Other religions believe him as a prophet. جس طرح دوسرے مذہب ہیں وہ ایک نبی مانتے ہیں یسوع مسیح کو، بٹ جو ہم ہیں کرسچن ہیں اس کو مائٹی گاڈ مانتے ہیں، بٹ ناٹ اے مائٹی گاڈ. وہ مائٹی گاڈ خدا کے یسوع مسیح کو نہیں مانتے. یہ صرف کرسچینٹی ہے جو یسوع مسیح کو مائٹی گاڈ مانتی ہے. کلام مقدس میں ہم کس طرح جان سکتے ہیں کہ یسوع مسیح مائٹی گاڈ، خدا قادر ہے؟ جو پہلا ہمارا اس میں پوائنٹ ہے وہ ہے خدا کا اختیار، اتھارٹی آف گاڈ. تو یسوع مسیح ہے وہ خدا کی اتھارٹی میں سے نکلا ہے. میں نے ایک بار کہا تھا کئی لوگ ہیں بہت مشکل ہے ٹرینٹی کو سمجھنا، پتہ نہیں کیسے ہے. میں یہ کہتا ہوں اتنا ایزی ہے کہ اگر آپ سورج کو دیکھیں اس میں سے روشنی نکلتی ہے، اس میں سے ہیٹ نکلتی ہے، اس کو سورج ہی کہتے ہیں. اسی طرح خدا میں بیٹا بھی ہے، خدا میں اسپرٹ بھی ہے اور خدا بھی ہے. یہ 3 چیزوں کا مجموعہ خدا سے ہم کہتے ہیں. اور اسی خدا سے بیٹا دنیا میں آیا ہے، نکل کر خدا سے، کہ ہمیں راہ دکھلا سکے. پہلا جو حوالہ پیدائش پہلا باب اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. Then God said, let us make human. سو اس میں یہ نہیں کہ خدا اکیلا ہی ہے، خدا یہ 3 چیزوں کا مجموعہ خدا ہے. سو let us make. سو جب خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی مانند بنائیں گے تو یسوع مسیح آلریڈی خدا کے ساتھ ہے. یوحنا پہلا باب 2 حدیث ہے، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. He existed in the beginning with God. سو اس کا بھی مطلب ہے کہ جب خدا تھا تو یسوع مسیح آلریڈی خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں. God created everything through him. God created everything through him. ساری چیزیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، کیونکہ یسوع مسیح خدا ہے اور وہ آلریڈی خدا میں موجود ہے، خدا سے نکل کر آیا. پہلا کرنتھیوں 8واں باب 6 آیت اس میں اس طرح لکھا ہے، لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ، جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں اور ہم اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے یعنی یسوع مسیح جس کے وسیلے سے سب چیزیں موجود ہوئیں. دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب 19 آیت. مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا. God was in Christ reconciling the world of himself. تو یسوع مسیح جو ہے یہ خود خدا تھا
जिस तरह मेरे से तो हमने पैदाइश में देखा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत पे बनाएं। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, सब चीज़ें उसी के वसीला से पैदा हुई और एक ही खुदा है, यानी यीशु मसीह जिसके वसीला से सब चीज़ें मौजूद हैं। खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कराया। तो हमें ये थोड़ा सा इल्म हो गया कि ये खुदा स्पिरिट यीशु मसीह ये खुदा है और वो इंसान के रूप में खुदा हमारे दरमियान रहा ताकि हम सब उसको समझ सकें। जो इसका जो दूसरा हम देखते हैं टॉपिक का वो है अथॉरिटी ओवर टेम्पटेशन। तो यीशु मसीह आप चूंकि दुनिया में आया है, वो एक इंसान बन के आया है, मेरी और आपकी तरह उसकी नेचर है। जिस तरह हमें सब चीज़ों की ज़रूरत है, यीशु मसीह को ज़रूरत है, चूँकि वो जलाल को छोड़कर हमारे दरमियान आया। इसलिए जिस तरह मत्ती रसूल की इंजील चौथा बाब उसकी पहली आयत में जब हम पढ़ते हैं कि खुदा ने ये जब यीशु मसीह ने 40 रोज़े जब रखे, उसके बाद यीशु मसीह ने 40 रोज़ों के बाद अपनी मिनिस्ट्री शुरू करने वाले, ये खिदमत का काम जो है ना वो शुरू करना है। लेकिन रूह लिखा है यीशु मसीह को जंगल में ले गया और वहाँ यीशु मसीह आजमाया गया। तो क्या यहाँ देखना है कि चूंकि अगर वो माइटी गॉड है, अगर वो खुदाए कादिर है, तो क्या आजमाइशों में इंसानों की तरह वो भी गिरा कि वो खुदा था, चूंकि इसलिए जिस तरह की मर्जी आजमाइश आए उसने खुदा को शो करना है कि मैं खुदा हूँ, इसलिए मुझे आजमाइशें नहीं गिरा सकती। हवाला पढ़े भाई साहब, अगर आपके पास बाइबल है तो ये मत्ती रसूल की इंजील चौथा बाब पहली से 10वीं आयत, इसको जरूर हम पढ़ेंगे। जिसने निकाल लिया पढ़े प्लीज। इस तरह कलाम पाक में लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं। ये पहली आजमाइश है, शैतान जब खुदा यीशु मसीह से बात कर रहा है, Tell these stones to become leaves of bread. उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुएं पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे। अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबा अपने बेटे को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तो ये दूसरी आजमाइश थी। सो पहला जो है वो कहा गया, शैतान कहता है कि तू ये पत्थरों को फरमा के ये रोटियां बन जाएं। तो ये पहली आजमाइश हुई। चूंकि यीशु मसीह आजमाइश उस वक्त आती है जब आपको उसकी डिजायर होती है, जिस चीज को आप चाहते हैं अगर वही आपके सामने आती है तो फिर हम ट्रैप होते हैं। तो पहली आजमाइश रोटियां बन जाएं, दूसरी आजमाइश कि तू अपने आप को गिरा दे, चूंकि फरिश्ते खुदावंद के तेरे साथ हैं, वो तुझे संभाल लेंगे। तो तीसरी आजमाइश बेटा, यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सारी शान शौकत तीसरी आजमाइश है। शो हिम ऑल द किंगडम ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर ग्लोरी। सो दुनिया की शान शौकत जो है ये शैतान यीशु मसीह को दिखा रहा है कि अगर तू मुझे झुककर सजदा करे तो ये भी तुझे दे दूंगा। अगर तू रोटियों को कहे कि ये पत्थरों को कहे रोटियां बन जाएं, तो ये पहली आजमाइश है क्योंकि यीशु मसीह को भूख लगी हुई है, और दूसरी आजमाइश है कि तू अपने आप को गिरा दे। तीसरी आजमाइश है कि मैं सारी दुनिया की शान शौकत, किंगडम और ग्लोरी तुझे दे दूंगा अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे। इब्रानियों चौथा बाब उसकी 15वीं आयत में तो लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार कहाँ नहीं जो कमजोरियों में हमारा मददगार ना हो सके। क्योंकि हमारा सरदार कहाँ ऐसा नहीं जो कमजोरियों में हमारा मददगार ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया है। यीशु मसीह सब बातों में
हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। For he faced all of the same testing we do, yet he did not sin. यीशु मसीह ने गुनाह नहीं किया जैसे भी उसको आजमाया गया है। मेरे चीज़ों मुझे एक बात का पता है, हमारे एक फ्रेंड हैं, उनके घर में गए, उन्होंने वो बोतल निकाली कि ये वाइन है, ये घर में बनाई गई है, ये कोई इसमें कोई इतराज़ नहीं है, इसमें फ़र्क नहीं है। लेकिन मेरे चीज़ों अगर आप उसको नहीं पीते, अगर आपकी ये कॉलिंग में फिट नहीं आती, तो चाहे घर में बनाई गई है चाहे बाहर बनाई गई है, यू हैव टू रिजेक्ट दैट। क्योंकि अगर आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आप ये शैतान की जो सारे आपके आगे फेंकते हैं उसको आप फॉलो करते हैं, आप उसको सजदा कर रहे हैं। अभी एक रिसेंटली बात हुई थी, वो रोटी पकाने का सिलसिला था, लेकिन मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं चर्च को छोड़कर चर्च को लेकर रोटी का, मैंने एक नवाला उसमें दे दिया उस खानदान को, आई लव दोस पीपल, लेकिन मुझे ये मेरे खुदा ने ये फरमाया कि जब उसका काम है, जब उसकी हैकल का नाम है, जब उसके नाम की बात है, तो फिर मेरे चीज़ों जिस तरह ये मुझे और आपको इस तरह स्ट्रांग होना चाहिए जिस तरह यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया था कि मुझे और आपको जो वो चाहता है कि हम किस तरह उसके कद के अंदाजा तक पहुंच सकते हैं वो काम करें। अगर मेरे चीज़ों शैतान यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि तू पत्थरों से कह के वो रोटियां बन जाए, यीशु मसीह ने उसको कहा कि इंसान सिर्फ रोटी नहीं जीता, वही यीशु है जिसने 5 रोटियां और 2 मछलियों के साथ 5000 को रजा दिया, 5000 को शेर कर दिया। वो उस पत्थर को रोटी बना सकता था, लेकिन ये टेस्ट का टाइम था कि क्या यीशु मसीह उस टेस्ट में अपने आप को पास करते हैं या नहीं। इसी तरह ये यीशु मसीह को करा रहा है, तू यहाँ से कुंकरे से छलांग लगा दे, फरिश्ते तुझे संभालेंगे। फरिश्ते मेरे अजीजों उसके हुक्म से चलते हैं, वो फरिश्तों को हवाएं बना के इस्तेमाल करता है, फरिश्ते उसके हुक्म से हिल नहीं सकते। वही फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आकर उसे सलाम करता है, लेकिन क्या ये फरिश्तों को हुक्म नहीं दे सकता। लेकिन चूंकि टेस्ट का टाइम है मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने हमें एक एग्जाम्पल दी, अगर तेरे सामने कभी टेस्ट आए तो तूने टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तीसरी बात, सल्तनत तुझे दे दूंगा, शान और शौकत तुझे दे दूंगा, ग्लोरी तुझे दे दूंगा, किंगडम तुझे दे दूंगा। यशायाह नबी ने 800 साल पहले इस बात को फरमाया कि सल्तनत तेरे कंधे पर होगी, तू अजीब मशीर खुदा कादर होगा और तेरी सल्तनत की इंतहा नहीं होगी। ये शैतान एक दिन के लिए सल्तनत देना चाहता है, लेकिन मेरे भी अजीजों सल्तनतों को बनाने वाला, दुनिया को क्रिएट करने वाला क्रिएटर जो है, वो जब दुनिया में आता है तो वो हमारे लिए इसलिए आता है कि हमने स्टैंड लेना है। जहाँ पे टेम्पटेशन है, टेम्पटेशन करने वाला अगर शैतान सामने आता है पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेरे अजीजों अगर खुदावंद के साथ आपका दिल 100% 100% लगा हुआ है तो फिर आपके सामने टेम्पटेशन कुछ नहीं कर सकती। आप उससे जो छिड़केंगे एंड यू विल अर्न द रिस्पेक्ट। जब आप कंप्रोमाइज करते हैं यू लूज द रिस्पेक्ट। जब आप उसको रिजेक्ट करेंगे कि नहीं, मेरे खुदावंद ने कहा है आजमाइश के साथ मैंने कंप्रोमाइज नहीं करना। आजमाइश खूबसूरती की है, आजमाइश चाहे पैसे की हो, आजमाइश चाहे इल्म की हो, आजमाइश चाहे ये शान और शौकत की हो, बट किसी चीज़ की भी क्यों ना हो मेरे चीज़ों, जब हमने खड़े होना है तो ये पता लगे कि इस शख्स ने, इस बेटे ने यीशु मसीह को पूरे तौर से जिंदगी दी है। आजमाइशें जिस तरह की मर्जी सामने रखी जाए आप उसको ठोकर मार सकते हैं ताकि उसके नाम को जला मिले। प्रेज है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है अथॉरिटी ओवर टीचिंग, तालीम देने पर इख्तियार। इसलिए उसे माइटी गॉड कहा गया था कि उसको टीचिंग पे इख्तियार था। टीचिंग के साथ जो कुछ कलाम में लिखा है वही है, कंप्रोमाइज हम नहीं करेंगे। यीशु मसीह ने जब दुनिया में आया इंसान बन के, तो बनने का मकसद यह है कि हम इंसान उसकी तरह बने। उसने हमें एक मॉडल लाइफ हमारे सामने पेश की कि मैं चूंकि इंसान बनकर आया हूँ, जिस तरह मैं रहता हूँ हर इंसान इसको फॉलो करके इस तरह अपनी जिंदगी गुजारे। सो तीसरा पॉइंट अथॉरिटी ओवर टीचिंग, तालीम देने पर इख्तियार। मत्ती सूरत की 22वां बाब उसकी 23rd से 30th तक प्लीज पढ़ने का रहनुमाई करें। मत्ती सूरत की 22वां बाब 23rd से 30th तक।
تو یہ ہے یسوع مسیح جب تعلیم دیتے ہیں وہ بھی اختیار کے ساتھ ہے، اس لیے اسے مائٹی گاڈ کہا گیا، اس لیے اسے خدائے قادر کہا گیا۔ اس طرح لکھا ہے، اسی دن صدوقی جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی اس کے پاس آئے اور اس سے یہ سوال کیا، اے استاد، موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر کوئی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی سے بیاہ کر لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ اب ہمارے درمیان 7 بھائی تھے اور پہلا بیاہ کر کے مر گیا، اور اس سبب سے کہ اس کی اولاد نہ تھی اپنی بیوی اپنے بھائی کے لیے چھوڑ گیا۔ اسی طرح دوسرا اور تیسرا بھی 7ویں تک۔ سب کے بعد وہ عورت بھی مر گئی، پس وہ قیامت میں ان 7 میں سے کس کی بیوی ہوگی، کیونکہ سب نے اسے بیاہ کیا تھا۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تم گمراہ ہو، اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو، کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان میں فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ تھینک یو۔ سو میرے عزیزو، یہ جب نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ تعلیم دینے پر یسوع مسیح کو اختیار تھا۔ جب بھی وہ ہیکل میں، جب بھی وہ باہر مجمع میں، جب بھی کہیں جاتے تھے، کلام میں بہت سے حوالے ہیں، میں نے صرف ایک پہ کیا ہے کہ وہ اختیار کے ساتھ تعلیم دیتا تھا۔ اب یہ جو کہانی ہے کہ یہ صدوقی، یہ فقی فریسی ہمیشہ یہ بلیو نہیں لاتے تھے کہ یسوع مسیح جو مسیح ہے وہ آ چکا ہے، اس لیے انہوں نے ہمیشہ یسوع مسیح کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں اس میں انسانیت ہمیں نظر آئے، پر چونکہ وہ مائٹی گاڈ خدائے قادر تھا، اس لیے انسان کا ٹریپ اس کے سامنے بہت چھوٹا تھا۔ تو یہ سٹوری صدوقی لوگ اس کے پاس لے کر آتے ہیں کہ میں اس کو اس لیے بیان کرتا ہوں کہ ہمیں پتا ہو کہ بعد میں ہمارے مرنے کے بعد ہم نے کیا ہونا ہے۔ صدوقی یہ بلیو کرتے تھے کہ قیامت کے بعد جو ہے اگر میاں بیوی، قیامت ہے ہی نہیں، اور قیامت کے بعد میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کو ریکگنائز کریں گے کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرا ہسبینڈ ہے۔ کلام مقدس میں بھی لکھا ہے وہ ریکگنائز کریں گے۔ لیکن یہ سٹوری بتاتے ہیں کہ اس طرح 7 بھائی تھے، انہوں نے اسی عورت سے شادی کی، لیکن وہ سارے مرتے گئے ہیں، یہ عورت بعد میں مری، لیکن قیامت کے دن یہ بیوی کسی ہوگی۔ تو یسوع مسیح نے کہا ان کو جواب میں کیا، تم گمراہ ہو۔ اب یہ دیکھیں یہ بہت سخت الفاظ ہیں، اور یہ جن سے بات ہو رہی ہے یہ معمولی آدمی، معمولی لوگ نہیں، سٹی میں رہنے والے، بستی میں رہنے والے، یہ لوگ سردار ہیں، یہ ہیکل کے سارے انتظام کو سنبھالتے ہیں، لوگوں کو لیڈ کرنے والے ہیں، اور ان کو کہا کیا، تم گمراہ ہو۔ متی 23 باب 14 آیت میں لکھا، اے ریاکارو، فقیو اور فریسیو۔ اب یسوع مسیح ان کو ٹیچنگ دے رہے ہیں تو کہا اے ریاکارو۔ تیسرا متی رسول چیپٹر 23 ورس 16، اے اندھے راہ بتانے والوں تم پر افسوس۔ اب یہ دیکھیں متی 23 اس کی 17ویں آیت، اے احمقو اور اندھو، کون سا بڑا ہے، سونا یا مقدس؟ تو میرے عزیزو، اور پھر آخری آیت بہت زبردست ہے، متی رسول 21 باب 32 آیت ملا کہ کیونکہ یوحنا راست بازی کے طریقہ پر تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا، مگر وصول لینے والوں اور کسبیوں نے اس کا یقین کیا، اور تم یہ دیکھ کر پیچھے بھی نہ پچھتائے کہ اس کا یقین کر لیتے۔ تم یہ دیکھ کر پیچھے بھی نہ پچھتائے کہ اس کا یقین کر لیتے۔ اس کی سٹوری پیچھے کیا، پیچھے بھی نہ پچھتائے۔ یہ یسوع مسیح سے جب سوال کرتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا آسمان کی طرف تھا یا زمین کی طرف سے تھا، تو وہاں پر وہ ان کو ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ ایک باپ ہے، وہ اس کے 2 بیٹے ہیں۔ وہ پہلے بیٹے کو کہتا ہے کہ پاکستان میں جا اور کام کر، اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانا۔ وہ دوسرے بیٹے کے پاس جاتا ہے، لیکن جب تک وہ دوسرے بیٹے کے پاس جاتا ہے اس کو کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے ہاں جی ڈیڈی میں جا کے کام کرتا ہوں۔ لیکن کیا ہوا کہ جس نے کہا کہ میں جاتا ہوں، گیا جو انہیں قریب میں رکھ لے انٹرنیٹ وندہ رہا انہیں، وہ نہیں گیا۔ جس نے کہا میں جاتا ہوں وہ نہیں گیا، لیکن پہلا جس نے انکار کیا کہ میں نے نہیں جانا، لیکن لکھا اور وہ پھر پچھتایا اور بعد میں گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ان دونوں میں سے کون فرما بردار رہا؟
तो वो बोलते हैं वो जो चला गया, कम से कम उसने हुक्म तो माना, पहले इनकार किया लेकिन बाद में पछताया, मैं क्यों अपने डैड को इनकार किया। वो फिर बाद में जाकर पाकिस्तान में चला जाता है। ये थी इसकी बैकग्राउंड कि जो पछताया लेकिन चला गया। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम उन टैक्स कलेक्टर, ये टैक्स कलेक्टर आप जानते हैं पाकिस्तान से हैं, जो चुंगियों में बैठते थे, ये सबसे ज़्यादा करप्टेड लोग थे, जो पैसे इधर से उधर से देख लेते थे किसी के पास क्या है, सब के सब, ये सबसे ज़्यादा बदनाम प्रोफेशन था टैक्स कलेक्टर का। और दूसरा तस्बियाँ, ये कितना इज्जतदार काम था। तो उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने ये सदूकियों को, ये जो फकी फरीसी हैं, उनको कहा कि तुमसे ज़्यादा बेहतर जो हैं वो कसबियाँ हैं, तुमसे ज़्यादा बेहतर ये टैक्स कलेक्टर हैं। कम से कम उन्होंने पछताकर तौबा करके तो मेरे पीछे हो गए हैं। कसबियाँ ने मुझे पीछा किया और अपनी ज़िंदगियाँ चेंज की हैं। टैक्स कलेक्टर ने अपनी ज़िंदगियाँ चेंज की हैं। और वो जैसे ज़कई की बात हम करते हैं, उसने सारा कुछ छोड़ कर लिया। और यीशु ने कहा आज इस घर में निजात आई है। लेकिन तुम जो सरदार हो, तुम जो ओहदेदार हो, तुम जो इंचार्ज हो, तुमसे बेहतर कसबियाँ हैं। तो ये तीसरा पॉइंट ये था कि यीशु मसीह ने इख्तियार के साथ तालीम दी, इसलिए उसको यशायाह नबी ने कहा ये माइटी गॉड होगा, ये खुदाई कादर होगा। उसके बाद है चौथा पॉइंट, अथॉरिटी ओवर फॉरगिव सिंस। यीशु मसीह को गुनाह माफ़ करने का इख्तियार था, जो इसलिए उसको खुदाई कादर कहा गया कि गुनाह माफ़ करने का इख्तियार था। जब हम ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ते हैं तो मेरे अज़ीज़ों के जो गुनाह माफ़ खुदा के सिवा कोई नहीं कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने कई जगहों पे इस बात को किया, मैं बेटा तेरे गुनाह माफ़ करता हूँ, मैं बेटी तेरे गुनाह माफ़ हुए, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और वो इस बात पे इतराज़ करने लगे कि ये इंसान होते हुए क्यों किसी के कैसे गुनाह माफ़ कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह इंसान के रूप में खुदा था, इसलिए उसको ये अथॉरिटी थी कि वो गुनाह माफ़ कर सके। यूहन्ना की जी 8वां बाब 3 से 11 प्लीज़ पढ़ने में रहनुमाई करें। 3 से 11 8वां बाब, यूहन्ना 8वां बाब 3 से 11 आता है। और फकी और फरीसी एक औरत को लाए जो ज़ना में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ऐसा ये औरत ज़ना में ऐन फैल के वक्त पकड़ी गई है, तो रेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करे, बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है। उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाले, मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। और फिर झुककर जमीन से उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक कर निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ऐ औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ऐ खुदावन, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। थैंक यू। For now on sin no more. For now on sin no more. अब ये यीशु मसीह ने कई लोगों के गुनाह, जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, लेकिन ये हवाला जो है यहाँ पे जिस तरह लिखा है कि ज़िना का औरत को लाया गया यीशु मसीह के पास, और बहुत से लोगों ने पत्थर पकड़े हैं और कहते हैं कि इसको संसार किया जाए, क्योंकि मूसा ने ये हुक्म दिया है कि जो अडल्ट्रस है उसको संसार किया जाए। अब यीशु मसीह ने नीचे बैठकर उंगली से कुछ लिखा। इस पे थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह ने अगर कुछ उंगली से लिखा तो वो क्या था। बहुत से उलमा जो हैं उनका फ़र्क ख्यालात पाए जाते हैं, लेकिन मेरे जो मुझे जो चीज़ मिली वो हिब्रू हिस्ट्री में वो ये थी कि योमे कपूर, द डे ऑफ अटोनमेंट, योमे कपूर की शाम तक, वो जो योमे कपूर का दिन होता था, शाम तक जो काहन हैं
اس کو منیمم، غور سے سننے والی بات ہے، اس کو منیمم 11 ٹائم اس میں غوطہ لگانا ہوتا تھا. جو حوض ہے، جو ہیکل کا حوض تھا، اس میں 11 مرتبہ اس کو غوطہ لگاتا تھا. اور جب شام ہو جاتی تو ہر غوطے کے بعد وہ یہ ورس پڑھتا تھا، او یہوہ the mikvah of Israel, just as the mikvah cleansed me on this day. May the Holy One, Messiah, blessed be his name, cleanse all Israel when he comes. جس طرح یہ حوض کا پانی مجھے صاف کرتا ہے، پاک مسیحا جب جس کا نام مبارک ہے وہ آئے تو پورے اسرائیل کو پاک کرے. اور یہی آیت جو ہے یہ انہوں نے ان کے جو ہبریو ہسٹری ہے اس میں لکھا ہے کہ یرمیہ 17 باب اس کی 13ویں آیت میں ہے، اے خداوند اسرائیل کی امیدگاہ، چونکہ یہ قانون تھا، اے اسرائیل کی امیدگاہ، تجھ کو ترک کرنے والے سب شرمندہ ہوں گے، چونکہ اس عورت نے حکم توڑا ہے. اور چونکہ حکم توڑ اس وقت ٹوٹتا ہے جب آپ حکم عدولی کرتے ہیں، حکم عدولی کی ہوئی ہے تو وہ سب شرمندہ ہوں گے. مجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند کو جو آب حیات کا چشمہ ہے ترک کر دیا. یہ آیت جو ہے یہ وہ یہوہ والی، یہ 12 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک ہر شخص کو منیمم 39 ٹائم سننا پڑتی تھی کہ مسیحا آئے گا. اور یہ نہیں جانتے تھے کہ 39 کوڑے یسوع مسیح کو ملیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ مبارک لوگ ہیں جو کرسچن ہیں کہ کہاں کی بات جو ہے کب ہونے والی ہے. وہ لوگ جو بلیو نہیں کرتے ان کی کتابوں میں آلریڈی مندرج ہے 39 ٹائم. اس آیت کو 12 سال کی عمر میں سے لے کر 50 سال کی عمر تک یہ سب کو سننی پڑتی تھی کہ مسیحا آنے والا ہے. اور یہ پانی، یہ حوض کا پانی ہمیں صاف کرتا ہے بیماریوں سے، یہ سے ہر طرح کی غلاظت ہماری دور سے ہوتی ہے. لیکن جب مسیحا آئے گا تو وہ ہمیں اس حوض میں سے صاف ہونے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہمیں صاف کرے گا، پاک کرے گا. تو یہ 39 ٹائم یہ ورس سنائی جاتی تھی. لیکن میرے عزیزو، یسوع مسیح نے یہ لکھا ہے کہ جب اسرائیل کا امیدگاہ جو یرمیہ کی 17ویں باب 13 آئے گا تو اس کو ترک کرنے والے ترک کر ہوں گے. اور جو آب حیات کا چشمہ ہے جس سے آب حیات بہتا ہے وہ ہم کو پاک کرے گا. اب یہ یقین رکھتے ہیں، لیکن جو یسوع مسیح جو موسیٰ کی شریعت تھی اس میں ایک بات بہت طاقتور تھی جو شاید آج کچھ ریلیجنز میں نہیں پائی جاتی. یہ طاقتور بات یہ تھی کہ اگر اس کے ساتھ پروف ہونا ضروری ہے. یہ لوگ جب اس عورت کو یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں، موسیٰ کی شریعت کے مطابق عورت کو نہیں لانا چاہیے تھا، ان دونوں کو لایا جاتا تھا. اور ہیکل کے دروازہ پر دونوں کو لایا جاتا تھا. مرد کا بھی ہونا ضروری ہے، عورت کا بھی. لیکن اس سچویشن میں صرف عورت ہے. بلاسفامی اور یہ جب وائلیشن کرتے تھے یہ ان لوگوں کے الٹ چلی جاتی تھی اور ان کو سزائیں دیتی تھی جو غلط باتیں آ کر ہیکل میں یا جسٹس میں لے کر آتے تھے. لیکن کیا ہوا تھا؟ دونوں کو لانا ضرور تھا. وہ دونوں وہاں موجود نہیں تھے، صرف ایک تھے. دوسری جو بات تھی، کم از کم 2 گواہ ہونے ضرور تھے کہ ہم وٹنس ہیں. اس میں کوئی گواہ نظر نہیں آتا، سب نے بس پتھر پکڑے ہوئے ہیں اور سنسار کرنا چاہتے ہیں. اور تیسرا جو تھا وہ کاہن، وہ ایک سرمنی، خاص سرمنی کرنی پڑتی تھی. اور سرمنی میں یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، یہ ہر بار جب سنسار کیا جاتا تھا زناکار لوگوں کو تو یہ آیت پڑھی جاتی تھی اور سرمنی کی جاتی تھی. سرمنی کا بھی کوئی اہتمام نہیں ہے، وہ پتھر مارنا چاہتے ہیں. اور چوتھی بات جو ہے، جو کاہن ہے، لکھا ہے ہیکل کی ڈرٹ پر انگلی کے ساتھ ان دونوں لوگوں جنہوں نے زناکاری کی ہے دونوں کے نام اور جس حکم کو انہوں نے توڑا ہے اس حکم کو اپنی انگلی کے ساتھ ڈٹ پر لکھتا تھا، کاہن لکھتا تھا. لیکن میرے عزیزو یہاں پر وہ بھی موجود نہیں تھا. لیکن یہ بات وہ بھول چکے تھے کہ یہ چاروں باتیں جو موسیٰ کی شریعت بتاتی ہے یسوع مسیح میں آلریڈی پائی جاتی تھی. اگر گناہ کی بات ہے تو ہم سب کے گناہ آلریڈی اس کے اوپر لادے جانے والے تھے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے
वो इस दुनिया में आया था। अब जब हम शाहिद की बात करते हैं, गवाही की बात करते हैं, तो वो ऑलरेडी गवाह, खुदा का गवाह दुनिया में आ चुका है। जब हम काहन की बात करते हैं, कलाम फरमाता है वो सरदार काहन है। जब हम उंगली से लिखने की बात करते हैं, यीशु मसीह खुद उंगली से लिख रहा है और लिखा है कि जब वो देखने वाले पास आते हैं, उनके नाम, उनके गुनाह उनके सामने आते हैं, वो पत्थर को फेंक कर चले जाते हैं। यीशु मसीह अकेला रह जाता है और उससे पूछता है किसने तुझ पर हुक्म चलाया? उसने कहा किसी ने नहीं। उसने कहा अगर किसी ने नहीं चलाया तो मैं भी नहीं चलाऊंगा, जा फिर गुनाह ना करना। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह एक उम्मीद लेकर आया, वो गुनाहगारों को किल करने के लिए नहीं। मूसा की शरीयत के मुताबिक ये कानून था, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया मैं और आप जिंदगी पाए। उसने उस औरत को एक उम्मीद दी, आज के बाद गुनाह ना करना, तू गुनाह नहीं करेगी, तू हमेशा जिंदा रहेगी इस दुनिया में और हमेशा की दुनिया में, क्योंकि तेरे लिए यीशु मसीहा ऑलरेडी मौजूद है। इसलिए उसने मेरे से इस उंगली से लिखा, क्योंकि ये जो हिब्रू हिस्ट्री है उसमें भी ये बात कलम बंद है कि वो उंगली से लिखता था और डर्ट पे इसलिए लिखता था कि जिस तरह ये दोनों हमेशा के लिए मर जाएं, ये लफ्ज जो है हमेशा के मर जाएं, ये परमानेंट नहीं लिखे जाते थे। ये जो हैकल की डर्ट है उस पे लिखे जाते थे। जो पांचवा पॉइंट है वो है अथॉरिटी ओवर डिजीजेस। यीशु मसीह को गुनाह पर इख्तियार था, इसलिए वो माइटी गॉड, इसलिए खुदा कादिर था। मत्ती की इंजील जब हम पढ़ते हैं 15वां बाब उसकी 30वीं आयत, प्लीज पढ़ कर रहमान करें। मैथ्यू 15:30 30 और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टूंडों और बहुत से और बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई और उनको उसके पांव में डाल दिया। थैंक यू। सो यहाँ लिखा है बहुत बड़ी यीशु मसीह खुदाए कादिर इसलिए है कि उसको बीमारियों पर इख्तियार है। कोई ऐसा हवाला हमें बाइबल नहीं मिलता कि यीशु मसीह ने वो ये लंगड़ा है ये ठीक नहीं हो सका, ये मुर्दा है ये ठीक नहीं हो सका। वो जहाँ गया सबको तंदुरुस्त किया। तो बहुत बड़ी भीड़ लंगड़ों की, अंधों की, गूंगों की, टुंडों की, बीमारों की उसके पास आई और वो लिखा है और उसने उसके कदमों में डाल दिया। उसने सबको चंगा भला कर दिया, सबको ठीक कर दिया। मत्ती रसूल की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 5वीं आयत। अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते और पहले सुनते हैं, और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। थैंक यू। तो ये दूसरा वाला भी हमें ये बताता है कि लंगड़े भी चलते हैं, इसलिए वो माइटी गॉड है। लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, पहले सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी दी जाती है। जो छठा पॉइंट है वो है अथॉरिटी ओवर नेचर। यीशु मसीह को ये इख्तियार था कि वो नेचर जो है उसको रोके, उसको बनाए। वो खुद खुदा था, इसलिए उसको अथॉरिटी थी नेचर के ऊपर। मत्ती रसूल की इंजील 8वां बाब उसकी 24वीं आयत इस पर रहना है। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शरीर उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छिप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम टिकालो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा। Thank you. बड़ा अमन हो गया। Then he got up and rebuked the wind and waves. और बड़ा अमन हो गया। फिर वो उठा है और उसने विंड को, हवा को और विंड जो चल रही थी उसको रोका और बड़ा अमन इसके बाद हो गया। तो मेरे चीज़ों यीशु मसीह खुदा कादिर इसलिए है कि उसको बीमारियों पर इख्तियार है, उसको लंगड़ों, अंधों को ठीक करने पर इख्तियार है, गूंगों को, मुर्दों को, टुंडों को, ये बहरों को, कोई भी किसी किस्म की बीमारी है यीशु मसीह ने ठीक किया। और उसके बाद नेचर पर, क्योंकि वो जो कहता था वहाँ साबित हो जाता था।
यहाँ हम देखते हैं कि कश्ती लिखा है, तो पूरा वाला पढ़े तो लहरों में डूबी जा रही थी। कश्ती देखें पानी कितना ऊंचा है और कश्ती डूबी जा रही है, लेकिन यीशु मसीह वहाँ मौजूद थे। उन्होंने जाकर जगाया, ऐ खुदावन हम डूबे जा रहे हैं। उसने विंड को और वेव्स को झटका है, वहाँ ठहर गई हैं और ये आगे चले गए हैं जहाँ इन्होंने जाना था। यीशु मसीह खुदा कादर इसलिए है क्योंकि उसको बीमारियों पे इख्तियार है, नेचर पे इख्तियार है। आखिरी बात, अथॉरिटी ओवर डेथ एंड लाइफ। यीशु मसीह को खुदा कादर इसलिए कहा गया था कि उसको मौत और जिंदगी पर इख्तियार था। यीशु मसीह को खुदा कादर इसलिए कहा गया था, उसको मौत और जिंदगी पर इख्तियार था। लूका की इंजील 7वां बाब उसकी 12वीं से 15वीं प्लीज पढ़ें। लूका 7 chapter 7 verse 12 to 15। जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो एक बूढ़ा को बाहर ले जाते थे। वो अपनी माँ का रोता बेटा और वो बेवा थी और शहर के बड़े लोग उसके साथ थे। उसे देखकर बड़ा उसको तरस आया और उससे कहा मत करो। फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ। उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा, है जवान, मैं तुझसे कहता हूँ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। और मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। यीशु मसीह को खुदा कादर इसलिए कहा गया था कि उसको मौत और जिंदगी पर इख्तियार था। ये नाइन के शहर का वाक़या है जो बेवा है, और ये बेवा का एक ही बेटा था। पहले बेवा है, एक ही बेटा, वो भी मर गया। लेकिन यीशु मसीह क्या है, वहाँ जाता है, इस मुर्दे को जिंदा कर देता है। मरकस 5वां बाब उसकी 22वीं आयत में लिखा है, इबादत खाना के सरदार यार की बेटी मर गई। यीशु मसीह क्या है, उसने उसको जिंदा किया है। यूहन्ना 11वां बाब उसकी 43 से 44 वर्स, मरियम और मर्था का भाई लाजर जो है, ये 4 दिन का मुर्दा था, वहां गया है और उसको जिंदा कर दिया। यीशु मसीह को खुदा कादर इसलिए कहा गया कि वो माइटी गॉड, कि वो इंसान नहीं था, वो इंसान के रूप में खुदा था। और मत्ती 27वां बाब 50वीं आयत 51 वर्स में लिखा है, यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चलाकर जान दे दी और मक़दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तिलक गई। मेरे चीजों, यीशु मसीह, फिर ये हवाला पढ़ेंगे, ने फिर बड़ी आवाज से चलाकर जान दे दी। यीशु ने कहा, मुझे जान देने का भी इख्तियार है, मुझे जान लेने का भी इख्तियार है। यीशु ने चलाकर जान दे दी और मक़दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तिलक गई। मेरे चीजों, यीशु मसीह को खुदाए कादर इसलिए ही कहा गया था क्योंकि वो जिस तरह उसने ये नाइन की बेवा, उसके बेटे को जिंदा कर दिया, लाजर को जिंदा कर दिया, यार की बेटी को जिंदा कर दिया, और फिर यीशु मसीह की कब्र आप देखें। जब हम देखते हैं कि लाजर की कब्र से पत्थर उठा दो, यीशु मसीह की कब्र से पत्थर उठा, अगर हम अपने सिस्टम में पाकिस्तानी कब्रें देखें तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आता, पत्थर क्यों उठा दो। ये था तरीकाकार उस वक्त कब्रों का। ये पहाड़ी के अंदर कब्रें खोदी जाती थी और यीशु मसीह की कब्र जो थी वो उसकी अपनी कब्र नहीं थी, उसका एक चाहने वाला, उसका एक पसंद करने वाला बहुत अमीर शख्स था। वो उसने अपने लिए ये कब्र जो है वो पहाड़ी के अंदर खुदवाई हुई थी। लेकिन जब यीशु मसीह मर जाते हैं तो वो खुद जाता है, वो खुद जाता है सरदार के पास कि जो हमको इसकी डेड बॉडी यीशु मसीह की दे दे, मैं इसको अपनी कब्र में दफना देता हूँ। उसके बाद पहरे बिठाए जाते हैं और ये है पत्थर जिसको लिखा है कलम मुकद्दस में, और पत्थर को लुढ़का दो। इसी तरह मेरे चीजों, लाजर की कब्र के भी सामने ये पत्थर था, पत्थर को मूव कर दो। पत्थर कब्र खोदी हुई होती थी, उसके बाद ये पत्थर इतना बड़ा हैवी होता था, इजीली इसे हटाना इतना आसान नहीं होता था। लेकिन मेरे चीजों, यीशु मसीह ने कहा, मुझे जान देने का लेने का इख्तियार है। यीशु मसीह ने जब अपनी जान दे दी तो मेरे चीजों, सबसे जो बड़ा काम हुआ वो ये हुआ कि हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और इंसान का और खुदा का मिलाप हो गया। वही आदम, वही हवा जो बाग एदन से फिरदौस से निकाले गए थे,
के जिंदा होने के बाद वो फिरदौस में जाता है, हमारे लिए मकान बनाता है, हमारे लिए वो तैयारी है। यीशु मसीह ने जब ये अपनी मौत का, यीशु मसीह जब मर गया तो आसमान से लेकर जमीन तक सारी चीजें मुतहर्रिक हो गई। यीशु मसीह फरमाता है, उसको कहा वो मरियम और मार्था और बहुत सी औरतें कब्र पर जाती हैं जब यीशु मसीह के अंदर है। वो लिखा है वो यहाँ नहीं है, वो जिंदा हो चुका है। मेरे अज़ीज़ो, यीशु मसीह जिंदा हो चुका है और बड़ा काम उसने मरने के बाद उसके आने का मकसद, खुदा कादिर होने का मकसद जो था वो उस वक्त पूरा हुआ जब हैकल का पर्दा फट गया, क्योंकि इंसान के साथ खुदा बात नहीं करता था, इसीलिए उसको इमैनुअल कहा गया था, क्योंकि जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। यीशु मसीह खुदा के रूप में हमारे साथ रहा। और मेरे अज़ीज़ों, जब पर्दा फट जाता है तो आज मैं और आप आजाद हैं, जहाँ चाहे बैठकर उसकी बंदगी कर सकते हैं, जहाँ चाहे इबादत कर सकते हैं, क्योंकि आज हमें काहन के पास अपने गुनाहों को लेकर जाने की जरूरत नहीं कि वो हैकल के पाक तरीन मुकाम में जाकर हमारी रिक्वेस्ट करे। आज यीशु मसीह इस दुनिया में आया था कि वो हमारे लिए जहान दे। मेरे अज़ीज़ों, क्रिसमस का मैसेज सिर्फ यीशु मसीह की पैदाइश तक महदूद नहीं, जब तक वो सलीब पर चढ़कर आसमान पर चला नहीं जाता उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता। यीशु मसीह खुदा कादिर इसलिए था कि वो उस पर ना तो किसी आजमाइश ने गालिब आया, ना वो तालीम देता था, वो इख्तियार के साथ देता था, लोगों के गुनाह माफ करता था, बीमारियां बख्शता था, और नेचर पे उसका इख्तियार था। और मेरे चीज़ों, मौत पे उसका इख्तियार था कि वो मौत और जिंदगी, और उसने कहा अल मेरवा की कुंजियां मेरे हाथ में है। आइए आज इस बात में हम सोचेंगे। ये संडे जो है इस साल का आखिरी संडे है। आइए मेरे अज़ीज़ों, इस बात पे हम गौर करेंगे कि हो सकता है अगला साल मेरी और आपकी जिंदगी में ना हो, तो क्या यीशु मसीह को हमने आज तक देखा है कि वो आ चुका है कि नहीं? और आएगा उस वक्त जब मेरा और आपका दिल 100% 100% उसकी मोहब्बत में गहरा होगा, उसके हुक्मों को मानेगा। अगर मैंने और आपने उसको कबूल नहीं किया तो मेरे लिए, आपके लिए आज वक्त है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, अगर उसकी वजह से उसके करीब नहीं आते तो आइए ये सारा कुछ छोड़कर उसकी मोहब्बत में आगे बढ़े और अपना तन मन और धन उसको दे दें और उसका शुक्र करें। थैंक यू।